Yes, Jayvan, you were saying something. You can continue now. Well, Jijaji, I have received your email that day regarding rejecting our business proposal. That too in big way. 7 out of 7 votes. Full majority. I then saw that email for a while, read all things carefully, and the next reaction was I went in a tremendous laugh afterwards, Jijaji. It took out all burden of mind. Yes, Jayvan, laughing is a good habit. We must do it regularly to release all burden on our minds. Yes, and coming towards your proposal, yes, you might have seen that it was majority of votes that have ruled out your proposal altogether, Jayvan. That's it. Yes, Jijaji, I know. And I also know that the herd would always follow the voice of their leader. And if the leader is against our proposal, then it is obvious that our proposal would go in dustbin by 7 out of 7 votes. I wonder why did you took that meeting altogether? ऐसा नहीं है जयवंत. Surely not this case for sure. You can say this because you are not the regular part of these agenda meets. Everyone over there have their own opinions over any matter, Jayvant. Nobody is running after them to push their opinions over them. I guess you have seen that very well on that day. Everyone came with their own set of logics. They know it very well that what they are doing. I guess you have never seen them giving any half-hearted opinions about your business proposal, Jayvant. Everyone is taken care of with all kind of transparency. Nobody was forcing or even influencing any opinion of theirs on others. It was all open, and same thing is reflected in the minutes of meeting if you have seen it accurately. Yes, I have seen it. That too very accurately, Jijaji. Same thing is reflected in minutes of meetings about what happened that day at meet. Every particular word or statement is exactly reflected in that MOM. I have went through it in detail. But Jijaji, what about that other meeting that you people attended that day separately? That too only 8 of you. Can I say the same about that other meeting too? Yes, Jijaji? Then what you want to say, Jayvant? Do you have any doubt about that meeting output? Are you doubting about our credibility? That too with so much harsh ways? Is it the case, Jayvant? Are you thinking on that line? Is it? Not in that way, Jijaji, but even you know how efficiently we have presented our proposal to your people. Every point, every detail has been explained on that day with all numbers, stats and clarity. And after that, our proposal is rejected in that way, that brutal way, all 7 out of 7. Even you have rejected it, Jijaji. What else I can think about it now? And you are talking about credibility, Jijaji? How can I trust you people? Well, Jayvant, maybe Janardhan has influenced your thought process against thinking about us this way. You yourself has seen that day that all of us were giving the same opinions that we have seen in MOM. Yes, we took other meeting for it, just to think in other way round, to look for any missing point if any. But after having thorough discussion over every possible point over it, all of us came to same conclusion, that to reject this proposal through full majority. I have even highlighted one sentence in that email, that educational premises and businesses like nightclub or something won't go together with hands in hand. Even you know the basic logic behind it if you think it on neutral ways. What would we do then other than rejecting this proposal? वेल जीजा जी, हमारे प्यारे प्यारे जीजा जी, यही तो आपकी बातें हैं
कि मैं आपसे इतना ज़्यादा प्यार करता हूँ जीजा जी। शायद आपने ACCS और बिजनेस दोनों को अलग अलग तरीके से सोचा है जीजा जी। अगर आप इन दोनों को एक बिजनेसमैन की तरह एक ही तराजू में तोलते तो ये सौदा घाटे का नहीं था कभी। ACCS बिजनेस के लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो सच्ची बात सामने आ ही गई जयवंत। तो फिर ये स्टूडेंट्स बेनिफिट, प्रॉफिट वगैरह वगैरह सब एक ढोंग था ना जयवंत, एक ढोंग। उस जनार्दन ने तुम्हें बहका कर यही सब तुम्हारे दिमाग में डाला होगा कि सालों से ACCS जो एक अच्छे स्टूडेंट्स, अच्छे नागरिकों की पीढ़ियों से पीढ़ियाँ बना रही है एक सही दिशा में, वहाँ तुम्हारे नाइट क्लब जैसे लुक्रेटिव बिजनेसेस जन्म ले और वो सब तबाह और बर्बाद कर दे जिसके लिए सालों से हम सब ने इतनी मेहनत की है जयवंत। शायद तुम सब के लिए बिजनेस के ज़रिए एक खेल हो सकते हैं, सिर्फ एक खेल, पैसा कमाने का। सही है ना? खेल? आप इसे खेल कहते हो जीजा जी? हम सब का जीवन एक खेल बन चुका है, बस एक खेल। यह कौन किसी का नहीं होता आज की तारीख में जीजा जी। हर कोई आज अपना फ़ायदा देखकर आगे बढ़ना चाहता है। ये खेल नहीं तो और क्या है। हम सब इस खेल के एक मोहरे हैं, मोहरे। आप ही आंखें खोल कर देखिए, रास्ते के बीचों बीच खड़े रह कर देखिए, कौन है यहाँ जो आपके लिए कुछ कर सकता है, वो भी बिना किसी स्वार्थ के जीजा जी। ये बड़ी बड़ी बातें करना सब एक ढोंग है, ढोंग। बुरा वक्त आ जाए तो कोई किसी का नहीं होता। हर कोई अपना अपना स्वार्थ लेकर वहाँ से निकल जाएगा और आप ऐसे ही खड़े रहोगे, बेबस, वही के वही, रास्ते के बीचों बीच जीजा जी। आप ज़रा आपके इन झूठे आदर्शों से बाहर निकलकर एक नई सोच से इस दुनिया को देखिए और फिर अपने विचार दीजिए। ये उसूल, ये आदर्श आजकल सिर्फ कमज़ोर लोगों की निशानियां बनकर रह गए हैं। किसी भी तरह की रिस्क न लेने का बहाना बन चुके हैं ये सब। इनसे हटकर अपनी पहचान बनाकर देखिए दुनिया में, फिर पता चलेगा ये उसूल और ये आदर्श सिर्फ खोखली बातें हैं, खुद को मूर्ख बनाकर रखने के लिए। मैं आपको ताने नहीं मार रहा हूँ जीजा जी, ना ही आपके रास्ते को पूरी तरह से झुठला रहा हूँ। अगर आप इन बातों को सही तरह से समझोगे तो जान लोगे कि मेरी इन बातों में 1% तो सच्चाई ज़रूर होगी जीजा जी।
बिजनेस की दुनिया में हर कुछ देख चुका हूँ मैं, दुनिया का हर रंग। अपनी एक सीधी सादी बात मनवाने के लिए हमें दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं जीजा जी। यही दुनिया का रंग है। आप यहाँ बैठकर घर में एक पार्टी का ऐलान कीजिए, ऐशो आराम की पार्टी। हर कोई आएगा फिर उसका मज़ा लेने, वो भी दूर दूर से। लेकिन कल अगर आपको कोई दुविधा या समस्या आ जाए तो उन्हीं लोगों के घर के दरवाजे अगर आप ठोकोगे तो भी कोई सामने नहीं आएगा आपकी मदद करने। ये बात जान लीजिए जीजा जी। मैंने दुनिया इसी नज़रों से देखी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी इन सच्चाइयों को समझते हो जीजा जी, हर तरह से। सच कह रहे हो तुम जयवंत, एकदम सच। एक अच्छे मंजे हुए खिलाड़ी बन चुके हो तुम अब। लेकिन जयवंत, एक बात तुम ज़रूर समझ लो कि दुनिया की हर सच्चाई एक तरफ और तुम्हारे अंदर की सच्चाई एक तरफ। अगर वो सच्चाई तुम जिंदा रखोगे ना जयवंत, तो तुम्हारा बिजनेस एक अच्छी नीयत से भी फल फूल सकता है। इसलिए तुम्हें कपट का सहारा लेकर गलत लोगों की संगत में तुम्हारे अंदर की वो सच्चाई मारने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी तुम्हें। तुम हमेशा अपने नज़रिए से बिजनेस की डेफिनेशन बनाते हो, लेकिन जयवंत, अगर वही एक नज़रिया दुनिया में होता तो बाकी बड़े बड़े बिजनेसमैन जो पुश्तों से अपना कारोबार संभाल रहे हैं, वो कभी अपने सीधे साधे बिजनेस प्लान्स में कभी सफल ना हो पाते जयवंत। उनके बारे में तुम क्या कहोगे? क्या वो सब भी तुम्हारे नज़रिए से मेल खाते हैं? क्या वो भी तुम्हारे इन नीच रास्तों पर चल के अपना व्यवहार कर रहे हैं? क्या तुम जीवन की ये सच्चाई नहीं देख पा रहे हो जयवंत? क्या वो सब भी तुम्हारे जैसे झूठ की राह पकड़कर सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं? क्या यही दुनिया देखी है तुमने? क्यों जयवंत, अब क्यों खामोश हो गए? क्या मेरी इन बातों में तुम्हें 1% भी सच्चाई नहीं दिख रही है जयवंत? वो सब छोड़िए जीजा जी, ये सब अपनी अपनी नज़र और सोच का परिणाम है। आप जो बातें मानते हो उसे मैं नहीं मान सकता, और मैं जो बातें मानता हूँ उन्हें समझना आपके शान के खिलाफ है जीजा जी। बेहतर रहे कि हम हमारे काम करने के तरीक़ों में एक दूसरे के रास्तों के बीच में ना आए और अपने अपने काम करते रहें। हमारे नज़रिए भले ही अलग हो, लेकिन मैंने कभी आपके रास्ते में आने की कभी कोशिश नहीं की है, और मैं भी यही चाहूँगा कि आप भी मेरे कामों में, मेरे इरादों में बीच में ना आए, ताकि हमारे सभी व्यवहार बने रहें और बने बनाए काम ना बिगड़े आगे जाकर, तो ही बेहतर होगा। अगर यही पैरामीटर तुम सेट करना चाहते हो जयवंत, तो तुम भी मेरे एसीसीएस के रास्ते में कभी बीच में ना आना कभी। मैं भी यही चाहूँगा हर बार कि मेरे व्यवहार बने रहे इन सब कामों में, और तुम्हारी किसी भी तरह की दखलंदाजी मैं इसमें नहीं चाहूँगा जयवंत। हर बात मैं सिर्फ तुम्हारे अंदाज और उसूलों के ज़रिए ही कह रहा हूँ जयवंत, ताकि तुम्हें कुछ तकलीफ़ ना हो। जीजा जी, ओ मेरे प्यारे प्यारे जीजा जी, आर्गुमेंट की जद्दोजहद में हम दोनों भूल गए थे कि ये बिज़नेस की बातें एसीसीएस के बारे में थी। इन सब का आपके घर में क्या काम? बाहर के काम घर पर लाकर हम हमारे आपसी रिश्ते क्यों ख़राब कर रहे हैं जीजा जी? ये वाद विवाद तो चलते ही रहेंगे हम दोनों के बीच। इनका हमारे आपसी निजी ज़िंदगी में कोई असर नहीं होने देना है हमें। अच्छा है जयवंत कि वक्त रहते तुम एटलीस्ट इन बातों को समझ तो रहे हो। मुझे तो डर था कि अपने बिजनेस की जुनून में तुम जीवन की सभी अच्छाइयों को पीछे छोड़ आए हो। लेकिन अच्छा लगा तुम्हारी ये बातें सुनकर, ये सोचकर कि कहीं तो तुम्हारी कुछ अच्छाइयाँ जिंदा हैं तुम्हारे निजी जीवन में जयवंत। अरे, तुम दोनों फिर से आर्ग्यूमेंट में फंस गए। तुम जीजा साले भी ना, कभी नहीं बदलोगे। लेकिन आप कब आए? मैं तो जयवंत के आने की खुशी में चाय नाश्ते का इंतज़ाम करने गई थी। इतने में इतने में आप कब आए यहाँ? इतने में आप कब आए ये पता भी नहीं चला। अब ये अवधूत कहाँ है हमारा? क्या वो भी निकल गया यहाँ से अब? श्रीमती जी, श्रीमती जी, शांति रखिए जीवन में आप। अवधूत अपने दोस्त के बर्थडे पार्टी के लिए बाहर गया है।
उसे आने में 10 बजेंगे, ऐसे वो कहकर गया है। रही बात मेरी, तो मैं बस अभी अभी आया हूँ और आते आते अवधूत और जयवंत मिले मुझे। अवधूत के जाने के बाद मैं हमारे साले साहब की खुशहाली पूछ रहा था। हमारे संजीदा विचारों पर हमारी चर्चा चल रही थी कि आप यहाँ चली आई। बस यही बात थी। ये अवधूत भी ना, जब जयवंत यहाँ आया था तब हम दोनों बहन भाई अच्छी बातें कर रहे थे। इतने में जयवंत का प्यारा भांजा आया उससे मिलने और दोनों मामा भांजे फिर अपनी अपनी बातों में खो गए। अवधूत को तो क्रिकेट की बातों के अलावा और कुछ तो सूझता नहीं है और जयवंत जो है वो अपने भांजे के रंग में ही हमेशा रंगना पसंद करता है। तो वो दोनों लगे पड़े थे उनके मामलों में, इसलिए मैं वहाँ से चली गई मेरे छोटे भाई साहब के लिए खाने पीने का बंदोबस्त करने। इतने में अवधूत बाहर चला गया और आप आ गए और अब आप दोनों अपने अपने मामलों की चर्चा में बिजी हो चुके हो और इतने में मैं फिर आ गई यहाँ ये सब देखने। तो मामला ऐसा है कि हर कोई यहाँ आ जा रहा है और मुझे इस बात की कोई खबर ही नहीं। श्रीमती जी, सही कहा आपने तो सीधे सीधे किसी नाटक की एंट्री एग्जिट यहाँ बता दी सबके लिए। और यही तो बात मैं अभी जयवंत को भी बता रहा था कि जिंदगी एक रंगमंच है और हम सभी उसी के कोई पात्र हैं। हर किसी को यहाँ नाटक के स्क्रिप्ट के हिसाब से नाचना है। क्यों जयवंत, सही कहा ना? हाँ बहना, एकदम बराबर कह रहे हैं जीजा जी। हम दोनों तो यही बातों पर कब से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे ताकि किसी बात के नतीजे पर हम आ सके। वैसे बहना, हमारे जीजा साले भांजे का प्यार तो ऐसे ही चलता रहेगा। तुम ज़्यादा तकलीफ ना लेना बहना, वरना हम सब के चक्कर में तुम अपना पात्र भूल जाओगी जो तुम्हें तुम्हारे रंगमंच पर उठाना है बहना, ये सब क्या चल रहा है जयवंत? कब से यही सुन रही हूँ मैं। रंगमंच, पात्र, खेल, खिलाड़ी, क्या बातें चल रही है ये सब? हर कोई अपने हिसाब से यहाँ चीज़ों को बयां कर रहा है। कोई मुझे भी तो बताए कि आखिर बात क्या है, क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में? क्या है ये सब बातें? अजी श्रीमती जी, बात यह है कि कोई बात नहीं है हमारे बीच में। हम तो बस हमेशा का खेल खेल रहे हैं। जैसा कि जयवंत ने तुम्हें बताया कि हम जीजा साले भांजे की बातें ऐसे ही मोड़ लेके एक इंटरेस्टिंग रास्ता पकड़ लेती हैं जिसे आप समझने जाओ तो आप अपना काम भूल जाओगे। वेल, लेट इट बी। आप लोगों की बातों में अगर मैं बीच में पड़ती रहूं तो मैं मेरा काम भूल जाऊंगी। छोड़िए सब बिना मतलब की बातें। चलिए आ जाइए दोनों, फ्रेश होकर डाइनिंग पर बैठिए। गरम गरम चाय और नाश्ता तैयार है हम सब के लिए। बहुत दिन के बाद हम सब साथ में नाश्ता करेंगे इस बार। जयवंत, आज तो मैं तुम्हें बिना खाना खाए यहाँ से जाने नहीं दूंगी। इस बार मैं कोई कहानी सुनना नहीं चाहूँगी तुम्हारी, समझे? चलो सब। हाँ बहना, तुम्हारी बातें मैं कैसे टाल सकता हूँ। इस बार तो तुम्हारी बात माननी ही होगी मुझे। चलिए जीजा जी, आप पहले चलिए। एक अच्छा वक्त बिताएंगे आज, सच में। Yes, dear. Please come. Please. Have a seat, please. Yes, you both. Thank you, sir. We heard that you called us both over here, sir. Yes, Madhuri and Srinivas. I called you both to discuss some important matter. First of all, congrats to you both. You both have got selected in our upcoming Masters quiz this year. So, congrats. Well, it wasn't a big task for us
to finalize 4 candidates from your class, as your record speaks for yourself only. We thoroughly went through with your results at last few exams and found some striking consistency at it, and that caused us to think to select you both for this year's master's quiz. Yes, we were disappointed for not to select Kirti and Kumar for this time. But yes, it happens. 4 slots to choose and 6 shortlisted candidates. But we are equally happy to tell you that we have selected 4 top students among your class to select those 4 slots. So congrats Madhuri and congrats Srinivas. Thank you sir. Pleasure it is. Well then, to move ahead, I've called you both here for specific reasons. Because I found you both level headed when it comes to crunch moments of competitions. Madhuri, I've never seen you making any fuss over small issues or anything. Even at some critical times, you stayed strong and never got distracted by any chaos or something. Srinivas, I've seen your progress in our last practice games conducted by our very own Mishra sir, and you came all good at it. I liked your quality to remain constant in both victory and defeats. And to know more, these are some very good qualities at your age, you both. Well, coming towards academics of you both, there I found more peace than any chaos, all because of your striking consistency at it. So, people, this is all background behind your selection for the Master's Quiz. But my agenda is quite different to call you people over here. I want to state that it were your classmates who took us to the finals last year. As you know, Ravi and Ekta fought out of their skills to overcome all challenges to reach to the finals. Yes, they lost it, but they made us proud in big way, people. Even the winning college principal came to me that day and told me that we have wonderful set of students who can fight at any platform at any stage to come all good. He praised our students with all hearts and praised our SCCS management for applying right culture within our campus. He was really pleased to see our progress, and so he was mighty pleased that his boys beat us in the finals. But rather than celebrating waywardly, he directly came to me to convey the strong ground reality of ACCS about our strong basics.